اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ بن سلمان کے مطابق اصلاحات کا مطلب سرزمین وحی پر فحاشی پھیلانا ہے۔ سعودی صارف مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں نماز استسقاء کے بعد ابر رحمت برس پڑا۔ طالبان حکومت میں پہلی مرتبہ مردوں اور خواتین کو کوڑوں کی سزا۔ گجرات کے مہاویر کالج کے کیمپس میں وی ایچ پی کارکنوں نے ہجوم کا، 3 مسلم طلباء پر وحشیانہ حملہ۔ مظفر نگر فسادات میں بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی وکرم سینی کی سزا پر روک لگانے کی عرضی الہ آباد ہائی کورٹ سے مسترد۔ عتیق احمد کے خلاف یوگی حکومت نے کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی، 1.23 ارب روپے کی ملکیت قبض۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے لیے 8 برسوں میں 76.34 کروڑ بجٹ مختص۔ راہل کی بھارت جوڑو یاترا میں پرینکا گاندھی بھی شریک۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ بن سلمان کے مطابق اصلاحات کا مطلب سرزمین وحی پر فحاشی پھیلانا ہے۔ سعودی صارف ایک سعودی صارف اور محقق فہد الغفیلی نے ایک کلپ شائع کر کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اصلاحات کے بینر تلے سعودی عرب میں فحاشی پھیلانے پر تنقید کی۔ میڈیا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک سعودی کارکن اور محقق فہد الغفیلی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بینر تلے حرمین شریفین میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کی خبر ایک کلپ شائع کر کے دی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سعودی صارفین نے بن سلمان کی صدارت میں سعودی عرب میں بے بند و بار حالات پر تنقید کی ہو۔ سعودی عرب میں ریاض اور ہالووین کے جشن کے ساتھ ساتھ اس ملک میں الکوحل کے مشروبات کے مفت استعمال اور مغربی حالات نے روایتی سعودی معاشرے کو غصے میں ڈال دیا ہے۔ سوشل نیٹ ورک پر سعودی صارفین سعودی ولی عہد کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بن سلمان کے نام نہاد اصلاحاتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں نماز استسقاء کے بعد ابر رحمت برس پڑا۔ جدہ میں طوفانی بارش کے باعث تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ سعودی میڈیا کے مطابق مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سمیت دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ پانی جمع ہونے کے باعث مکہ جدہ ہائی وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ جدہ میں طوفانی بارش کے بعد تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں زائرین اور عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر آنے سے قبل متعلقہ ایئر لائن سے فلائٹ کا سٹیٹس معلوم کریں۔ شدید بارش کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے اور متعدد پروازیں منسوخ کی گئی ہیں یا روانگی اور آمد میں تاخیر ہوئی۔ کچھ روز قبل خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی تھی۔ طالبان حکومت میں پہلی مرتبہ مردوں اور خواتین کو کوڑوں کی سزا۔ افغان عدالت نے 3 خواتین اور 11 مردوں کو کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق صوبائی حکام نے بتایا کہ 3 خواتین اور 11 مردوں کو بدھ کے روز افغانستان کی عدالت کے حکم پر چوری اور اخلاقی جرائم کا مجرم پائے جانے کے بعد کوڑے مارنے کی سزا سنائی گئی ہے۔ افغان عدالت کا کوڑے مارنے کا حکم ایسے وقت سامنے آیا جب طالبان کے سپریم لیڈر کی جانب سے رواں ماہ ججوں کو اسلامی قوانین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ طالبان سپریم لیڈر کے حکم کے بعد پہلی بار کوڑے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بعض جرائم کے لیے جسمانی سزا لازمی ہے۔ اسی دوران صوبہ لوگر کی انفارمیشن اینڈ کلچر کے سربراہ قاضی رفیع اللہ سمیم نے اے ایف پی کو بتایا کہ کوڑے سرعام نہیں لگائے گئے ہیں۔
गुजरात के महावीर कॉलेज के कैंपस में वीएचपी कारकुनों ने हुजूम का, 3 मुस्लिम तलबा पर वहशियाना हमला। गुजरात में सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में 3 मुस्लिम तलबा की पिटाई का मामला सामने आया है। वीएचपी बजरंग दल के कारकुनों के एक हुजूम ने 3 मुस्लिम तलबा पर यह दावा करते हुए वहशियाना हमला किया और कहा कि तलबा लव जिहाद में शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने कैंपस में मारा पीटा और मुस्लिम तलबा पर लव जिहाद का इल्जाम लगाया है। तलबा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। 3 मिनट तवील वीडियो में देखा गया कि लोग तालिबे इल्म पर लातों की बारिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग इर्द गिर्द खड़े थे। जैसे ही असातिज़ा ने मुदाखलत की, वो उसे घसीट कर बाहर ले गए और मारते रहे। ताहम इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई है। वीएचपी ने इस हमले को श्रद्धा वालकर के उसके साथी के बेहमाना कत्ल से जोड़ा है और उसे अपने दिफा में की गई कार्रवाई करार दिया है। अतीक अहमद के खिलाफ योगी हुकूमत ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 1.23 अरब रुपये की मिल्कियत कब्ज। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जोर आवर मुस्लिम लीडरों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के खिलाफ तो जैसे मकामी इंतजामिया बुरी तरह पीछे पड़ गई है। कभी अतीक अहमद की मिल्कियत पर कब्जा होता है और कभी उनके रिश्तेदारों की मिल्कियत कर्क की जाती है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ योगी हुकूमत ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 1.23 अरब की मिल्कियत कर्क कर दी है। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इसमें थाना कुद्दाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। थाना धूमनगंज में भी इसी तरह 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका जब्तीकरण किया गया है, उनकी भी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल 5 संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है जिनकी कुल लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। शेष 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसी तरह और भी संपत्तियों का चिन्हीकरण हमने किया है जिनको हमने प्रोसेस में डाला है, वो प्रोसेस भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और अन्य संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई भी बहुत शीघ्र होगी। इस तरह से जितने भी माफिया और गैंगस्टर यहाँ हैं जिन्होंने अवैध ढंग से प्रॉपर्टीज अर्जित की हुई हैं, उन सभी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर फसादात में बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली विक्रम सैनी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद। जस्टिस गोपाल ने अपने हुक्म में मुशाहिदा किया है कि अपील कुनिंदा की तरफ से जो दलाइल पेश किए गए हैं वो अदालत में किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात मामले में बीजेपी के रुकन असम्बली विक्रम सैनी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस गोपाल ने अपने हुक्म में मुशाहिदा किया है कि अपील कुनिंदा की तरफ से जो दलाइल पेश किए गए हैं वो अदालत में किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। नाअहली का बाइस बनने वाली मुजरिमाना सरगर्मियां मुल्क के मफाद में, आम शहरी के मफाद में है और फिरका वाराना हम आहंगी से वाबस्ता है। महज ये दलील देकर कि अपील कुनिंदा कसूरवार करार देने से नाअहल हो जाएगा, सजा को मुअत्तल करने की कोई बुनियाद नहीं है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के लिए 8 वर्षों में 76.34 करोड़ बजट मुख्तस। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ की स्कीमात शादी खानों पर 46.60 करोड़ का खर्च। मुसाबिक़ती इम्तिहानात की उर्दू में किताबें। तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू अकेडमी के ज़रिए उर्दू ज़बान की तरक्की व फ़रोग़ के लिए गुज़िश्ता 8 वर्षों में 76.38 करोड़ बजट जारी किया और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की तादाद 30,812 है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से उर्दू अकेडमी की 8 साला कारकर्दगी पर जारी करदा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 152 शादी खानों की तामीर के लिए
46.60 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। उर्दू अकेडमी से मुसाबिकती इम्तहानात के लिए उर्दू ज़बान में निसाबी कुतुब की इशाअत अमल में लाई गई। हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की भलाई और तरक्की के लिए मुनासिब बजट जारी कर रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शरीक। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पहली बार शिरकत की। रियासत में यात्रा के दूसरे दिन सख्त हिफाजती इंतजामात, सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में गांधी ने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक सुबह बोरगांव से पैदल यात्रा का आगाज़ किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के बोरगांव से शुरू हुई, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पहली बार शिरकत की। रियासत में यात्रा के दूसरे दिन सख्त हिफाजती इंतजामात, सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में गांधी ने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक सुबह बोरगांव से पैदल यात्रा का आगाज़ किया। प्रियंका गांधी जो कल यात्रा में शामिल होने आई थीं, उन्होंने भी कदम से कदम मिलाए। मोहतरमा गांधी जुमा और हफ्ते को भी यात्रा के साथ जाएंगी। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।